So good morning guys. Done with the workout. 25 minutes of cardio and just 4 arms today. Only 4 arms. 3 exercises: dumbbell twisters, reverse curl and front curl. 8 to 10 sets of each. Reps I did not count. All of them were, I guess, more than 15. So done with the workout. Stretching आज नहीं करी है. I just want to feel the pump on my forearms for a little longer. I needed to talk about the pre-workout which I'm taking. It's giving the kick, F9 asylum, as I told you, something like that. So it gives you that itchy feeling for about 10-15 minutes. It gives you the feeling that you're going to last very long during your workout, but the pump really goes away in like next 15 to 25 minutes. It doesn't last that long. I've been taking it for past 15-20 days, I guess, but I don't know. Initial kick is good, but no, not really. I actually want to take Jacked. So earlier it used to come as Jack 3D, but due to some substance it was banned throughout the world. But now it has come in a new packing and with new ingredients, but it is still considered to be pretty hard and one of the strongest pre-workouts. So it's called Jack NitroFlex Jacked. Yeah, so once I'm done with this pre-workout, I'll be taking that and I shall tell you how it feels and I will review it accordingly. Maybe next week I'll order it or post that, because the one which I have, F9, I took a big box of that. I bought a big box. It is 400 or 450 grams, something like that, 50 or 60, 70 servings. So once I'll finish it, I shall tell you the report of that. Other than that, still carrying on with that shitty protein, the sipper also. I got it from them. KO Knockout, powered by Absolute Nutrition. The most bullshit and pathetic protein which you can possibly buy. It's just sugar and the flavor. That's it. I don't think there's even protein inside it. But nevertheless, made an investment in it. So we'll finish it and I'll catch you guys soon. Probably in the shop, right? So I'll see you guys around. So guys, welcome back again. Today is Mahashivratri, Wednesday. I started the vlog on Tuesday, so I thought maybe I could record something good, but nothing really wonderful happened. लेकिन हाँ, शाम के टाइम शॉप क्लोज करते समय पैर ऑन द स्टेज फिसल गया बहुत बुरे तरीके से. आई फेल डाउन. तो एज यू कैन ऑलरेडी सी, बॉडी भी हैवी है, वेट भी ज़्यादा है, तो उस पर द इम्पैक्ट विच आई हैड वाज टेरेबल. तो जो मेरे लेफ़्ट लेग की एंकल है वो पूरी ट्विस्ट हो गई और आई डोंट नो, डॉक्टर के पास शायद विद इन अ डे और 2 जाना पड़ेगा अगर स्वेलिंग नहीं जाती है. स्वेलिंग मतलब एंकल के ऊपर इतनी मोटी स्वेलिंग हो चुकी है, मेरे पूरे हाथ जितनी बड़ी. एंड ट्रस्ट मी, आई हैव सम प्रीटी बिग हैंड्स. स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है. आइस पैक लगा लिया, हॉट पैक लगा लिया, लोशंस लगा लिए जितने भी आते हैं आपके पेन रिलीफ वाले. बिन हैविंग मेडिसिन ऑल्सो, लेकिन एज सच कुछ वो नहीं है कि मतलब रिलीफ मिला हो इतना. तो इट्स जस्ट दैट आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट. आई एम नॉट गोइंग टू एनी डॉक्टर एज ऑफ नाउ. आई विल वेट फॉर अनदर 2 days maximum, or maybe by today evening or tomorrow morning I'll go to the doctor if the pain still remains and the swelling doesn't come down. उसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है. बस फ़ोन की स्क्रीन क्रैक हो गई. इफ़ यू कैन सी, यहाँ से पूरी की पूरी स्क्रीन बस्ट हो गई है. एज आई टोल्ड बिफोर, पैसे वैसे ही नहीं है फ़ोन लेने के. नया जो अभी चल रहा है फ़ोन, उस पर भी खर्चा आ गया है. तो खर्चा तो क्या ही करवाएंगे इस पर. इसका मैंने पता किया था, तो इसकी जब लास्ट टाइम पहले मैंने पता किया था तो इसकी स्क्रीन ही ओरिजिनल स्क्रीन सैमसंग सर्विस सेंटर वाले लोग वर सेइंग कि 20-25,000 रुपीज़ कुछ की स्क्रीन है.
और इतने का तो अभी फ़ोन निकलने भी नहीं वाला है। मैक्सिमम 7-8-10,000 मिल जाएगा तो मिल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। तो कंगाली में आटा गीला जैसे बोलते हैं, दैट हैपेंड। एंड अब जिम तो आई गेस रह गया है। एंड येस, प्रॉबली my son's swastik's exams will be over on 11th. He has his last exam and maybe on 12th we'll go to Haldwani for just 2 days, क्योंकि अब उसका बर्थडे भी इसी मंथ में आ रहा है 18th को, तो वो भी घर पे सेलिब्रेट करना है। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स फ्रॉम द सोसाइटी वुड कम एंड लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो। तो मैक्सिमम 2-3 डेज़ के लिए जाएंगे। स्वास्तिक विल मीट हिज मौसी, सबसे बड़ी वाली मौसी, उनसे मिलेगा, उनके घर पे रहेगा 2-3। तो वही प्लान है, अभी देखते हैं एग्जीक्यूट होता है नहीं होता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी एक बार बोला था, इट्स बिन मोर देन अबाउट 2-2.5 years दैट आई हैव बिन टू हल्द्वानी एंड आई रियली लव दैट प्लेस। मेरे काफ़ी रिलेटिव्स भी वहाँ रहते हैं एंड वी हैव आवर एंसेस्ट्रल होम ऑल्सो ओवर देयर। सो येस, दैट प्लेस हैज़ अ मतलब डिफरेंट ऑरा। बोलते हैं ना एक स्मॉल टाउन वाइब, उसमें स्मॉल टाउन वाइब तो आती है, लेकिन यू स्टिल गेट दैट बिग टाउन वाइब, एज यू हैव ऑल द ब्रांड्स, द बिग जिम्स, शॉपिंग मॉल्स एंड एवरीथिंग, इट्स देयर। और आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, आप हल्द्वानी में काठगोदाम में आप रहेंगे तो आप जहाँ भी नज़र घुमाएंगे आपके सामने पहाड़ दिख जाएंगे आपको, तो दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल। तो देखते हैं अगर गए तो। वैसे तो अभी तक मैं कोशिश कर रहा हूँ, दीप्ति से भी बात कर रहा हूँ, शी वॉज अ लिटिल हेजिटेंट ऑल्सो कि 2 दिन के लिए क्या जाना है, लेकिन मैंने बोला 2 दिन के लिए तो एटलीस्ट चलते हैं क्योंकि इसके बाद फिर नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और फिर गर्मी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ट्रैवलिंग विद प्रतिष्ठा एट दिस टाइम व्हेन शी इज़ जस्ट 11 months old, इट कुड बी अ टास्क, बी इट ट्रेन, बी इट कार, इट माइट जस्ट बी अ टास्क टू ट्रैवल विद हर। तो स्वास्तिक को मैंने बोला तो ही वॉज़ रियली ईगर, ही वॉज़ वेरी मतलब एक्साइटेड कि हम कब जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे। उसके हिसाब से हम अभी जाने वाले हैं, तो उसको किसी न किसी किस्म की गोली देनी पड़ती है कि अभी नहीं जाना है। वंस योर एग्ज़ाम्स आर ओवर, द लास्ट एग्ज़ाम गेट्स ओवर, हिंदी का है, उसी में उसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आई गेस, लेकिन वैसे लिख लेता है, सब कुछ कर लेता है। तो अब देखते हैं, प्लान तो बन रहा है, कैब बुक करेंगे। तो एक बार आज शाम तक कॉन्फर्मेशन 100% की हो जाए जाने की, तो वी विल बी डेफिनेटली गोइंग। वहाँ का भी व्लॉग बनाएंगे पूरी ट्रैवलिंग का। तो प्लान ये है कि जाएंगे कैब से, रीज़न बीइंग सुबह 6:30 बजे की शताब्दी है, और 6:30 बजे की शताब्दी का मतलब है सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, 5 बजे घर से निकलना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीच द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ में इतनी मॉर्निंग में सब कुछ करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट। तो कैब से जाएंगे मॉर्निंग में, जब सब उठ जाएंगे 7:30-8 बजे, तो आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट वगैरह probably will leave by 8:45 or 9, or maximum by 9:30 we would push off, and we would, if the roads are good, traffic इतना नहीं लगता है, we do not get into congestions, so max to max 3 or 3:30 in the afternoon, it should take 5 to 6 hours maximum to reach हल्द्वानी। उसके बाद सीधा स्वास्तिक की सबसे बड़ी मौसी के घर पे, निधि दीदी के घर पे। Yes, तो that place is really beautiful, that place is like मेन हल्द्वानी सिटी जो है उससे अराउंड 3 to 4-5 किलोमीटर्स पहले बहुत ही ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड एरिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल एकदम, मतलब ऑरा है, खुली खुली जगह है, हवा बहुत अच्छी चलती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो पॉल्यूशन जिसको बोलते हैं हम, ज़ीरो पॉल्यूशन। तो वहाँ जाएंगे, आराम से 2 दिन रहेंगे, एंड देन विल टेक द शताब्दी, क्योंकि हल्द्वानी से दिल्ली की जो शताब्दी है वो चलती है दिन में 3 या 3:30 बजे आएगी इस काठगोदाम से। तो देखते हैं, अभी तक तो प्लान यही है आने जाने का। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज रात को बुकिंग करूँगा, ट्रेन की भी और कैब की भी। सो लेट्स होप मेरा एंकल जल्दी से ठीक हो जाए, पैर की स्वेलिंग जल्दी ख़त्म हो, तो थिंग्स वुड बी डिफरेंट। क्योंकि अब जैसे आज जिम मिस हो गया, एंड आई एम प्रीटी श्योर अगले 1 से 2 दिन का जिम फिर से मिस होने वाला है पैर की वजह से। वैसे ही जिम बहुत अच्छा चल रहा था जैसे, तो करते हैं जैसे तैसे होता है, एंड आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड।
and I'll see you in the next vlog. Till then, take care, do good for yourself and for somebody else. Goodbye.